السلام علیکم فرینڈس، تو آج ہم اس ویڈیو میں حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کو حرکات کہتے ہیں۔ پھر سے سن لیجئے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اس میں ہم تین حرکات کو پڑھیں گے۔ پہلی ہے زبر، دوسری ہے زیر، اور تیسرا ہے پیش۔ تو تین حرکات ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو پہلی حرکت ہے زبر۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے نا، جیسے بتایا۔ جیسے یہ ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، تو وہ الف نہیں بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف خالی نہ ہو، وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز ہے اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیشہ آواز کو اوپر کر کے پڑھنا ہے، منہ کھول کر پڑھنا ہے جب زبر کو آپ ادا کریں۔ تو اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا۔ اب اس میں آواز دیکھ لیجئے، اس میں جو آواز آتی ہے وہ چھوٹے آ کی آواز آتی ہے۔ کس کی آواز آتی ہے؟ چھوٹے آ کی۔ جیسے ہم ہندی پڑھتے ہیں، چھوٹا آ بڑا آ، چھوٹی ای بڑی ای، تو اس میں کیا ہے؟ چھوٹے آ کی آواز آتی ہے۔ اس کو پڑھ لیا، پتہ لگ گیا آپ کو کس کی آواز آئے گی؟ اس میں چھوٹے آ کی آواز آئے گی۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کو رواں، یہ تو ہجے ہو گئے جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے۔ اب اس کا رواں کیا ہوگا؟ را، زا کے اوپر زبر ہے، رواں ہوگا زا۔ سین کے اوپر زبر ہے، رواں کیا ہوگا؟ سا۔ شین کے اوپر زبر ہے، رواں بتائیے؟ شا، صا، ضا۔ اور کوئی ہجے پوچھے تو ہجے کر دیجئے، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، یہ کاف ہے۔ لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا۔ اب اس کا رواں بتائیں، رواں کیا ہوگا؟ واو کے اوپر زبر ہے، رواں کیا ہوگا؟ وا۔ ہا، حمزہ کے اوپر زبر ہے، آ، یا۔ عربک میں جو یہ یا ہوتی ہیں دونوں سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہمیں دونوں کا دھیان رکھنا ہے، چھوٹی یا کی آواز کس طریقے سے آئے گی، بڑی یا کی آواز کس طریقے سے آئے گی۔ تو اب اس میں ہم رواں پڑھیں گے۔ پہلے ہجے کر لیجئے، ہجے بتا دیتا ہوں کیسے ہوگی۔ دال زبر دا۔ اچھا، ہجے کس طریقے سے کرنی ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے آپ نے اس کے ہجے کی، پھر اس کے ہجے کی، پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ دونوں کی ہجوں کو ملانا ہے۔ جیسے دال زبر دا، تو اس کا رواں کیا ہوا؟ دا۔ را زبر را، رواں کیا ہوا؟ را، دا را۔ سین زبر سا، درا سا۔ پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، ان دونوں کو ملانا ہے، پھر تیسرا حرف پڑھنا ہے، پھر تینوں کو ملانا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، یہ دال کیا ہے؟ مفرد حرف ہے، اور زبر کیا؟ حرکت ہے۔ جس بھی حرف پر حرکت ہو وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک حرف۔ اسی طریقے سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، یہ اتنا کاف ہے، پھر یہ سین ہے، ٹھیک ہے، یہ سین ہو گیا، یہ کاف ہو گیا۔ سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا۔ یہ تو ہجے ہو گئیں۔
अब रवा कैसे पढ़ना है, जैसे दाल के ऊपर ज़बर है, रवा क्या होगा, हाँ ये हमने अभी देखा था, दाल ज़बर दा, तो दा क्या हो गया, रवा हो गया, तो ये हो गया दा। खा के ऊपर ये इतना खा है, ये यहाँ तक ये खा की शक्ल है, खा के ऊपर ज़बर है, रवा क्या होगा, खा ज़बर खा, तो रवा होगा खा। तो जब हम इन दोनों का रवा मिलाएंगे, इसका रवा था दा, इसका रवा था खा, तो हम दोनों का रवा मिलाएंगे तो ये हो जाएगा दा खा। लाम ज़बर ला, है ना, इसका रवा होगा ला। अब हम तीनों का रवा मिलाएंगे, पहले हमें 2 का रवा मिलाना है, फिर तीसरे का रवा पढ़ना है, फिर तीनों को मिलाना है, तो हो जाएगा दा खा ला। ऐसी ब ला बला गा, क्या हो गया, बला गा। ये लाम है, ये गैन है, इनका रवा पता ही है, सब में आ की आवाज़ आएगी। व ज वज द वजद स ज सज द सजद। तो इसे पढ़ लें एक बार, दरसा। अब इसे खींचना नहीं है, जैसे दरसा नहीं पढ़ना है, दरसा बिल्कुल मारूफ पढ़ना आपको, ना मजहूल। दरसा भी नहीं पढ़ना, मजहूल का मतलब होता है जैसे अलिफ ज़ेर ए बे ज़ेर बे, ये मजहूल तरीका होता है। अलिफ पेश ओ बे पेश बो ते पेश, तो ये मजहूल तरीका होता है। और झटके से कैसे पढ़ते हैं, अलिफ ज़बर अ बा ज़बर बा, ये खींच कर झटके से हो गया। आपको मारूफ पढ़ना है, नहीं ऐसे, अलिफ ज़बर आ बा ज़बर बा। तो कसबा दखला बलगा वजद सजद। ठीक है, अब ज़ेर पर आते हैं। ज़ेर में क्या है, ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर को किस तरीके से पढ़ना है, आपको मारूफ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है। जैसे अभी मैंने बताया मजहूल तरीके से कैसे बचें, जैसे अलिफ ज़ेर ए बे बा ज़ेर बे ता ज़ेर ते सा ज़ेर से, ये मजहूल तरीका है। क्या है ये, मजहूल तरीका है। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे इसमें इनमें आवाज़ बता दूँ, इसमें आती है आवाज़ छोटी ई की आवाज़ आती है। किसकी आती है, छोटी ई की इसमें आवाज़ आती है। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी। अब इसको रमा पढ़ें, ज़ी री ज़ी, पता है छोटी की आवाज़ आएगी सब में। सी शी सी दी ती ज़ी ई गी फ़ी की, है ना। हिज्जे भी बता दे रमा, लेकिन आपको जो है रमा पता होना चाहिए। की ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। अब मश्क कर लेते हैं। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम 2 हरूफ को मिलाएंगे तो कैसे आवाज़ आएगी, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। जल्दी पढ़ेंगे, खींचना भी नहीं है, मजहूल तरीके से भी आपको नहीं पढ़ना है। रा के ऊपर ज़बर है, रमा क्या होगा बताया था यहाँ पर, रा। दाल के नीचे ज़ेर है, रमा क्या होगा, दी। ठीक है, अब दोनों का रवा मिला, इसका रवा रा, इसका रवा हो गया दी, तो मिलाएंगे तो क्या होगा, रदी। ऐसी फ़ा ज़बर फ़ा, तो क्या हो गया, रदी फ़ा। समझ में आया। ऐसी इसका ये हा है, यहाँ पर हा के ऊपर ज़बर आ गया, रमा पता है हमें क्या होता है, यहाँ से पढ़ा था हमने, हा मीम के नीचे ज़ेर आ गया तो क्या होगा, मी। अब दोनों का रवा मिलाने के लिए कहा है तो क्या होगा, हमी। दाल ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर है तो क्या होगा रवा, दा, हमीदा। ऐसी शही शहीदा शहीदा। अब इसे पढ़ लेते हैं। ये जो नुक्ता है ये जीम का नहीं है, जीम का अगर यहाँ पर नुक्ता होता तब जीम का माना जाता। ये यहाँ पर है तो बा का नुक्ता है। अब ये जो नुक्ता है ये खा का नुक्ता हो गया, तो बा के ऊपर ज़बर है तो बा होगा, खा के नीचे ज़ेर है तो खी होगा। दोनों का रवा जब हम मिलाएंगे तो होगा बखी। ठीक है, बाखी नहीं बखी, इस पर ज़बर है लाम पर, ला हो जाएगा, बखीला बखीला। ऐसे इसे देखें, सीन के ऊपर ज़बर है सा, खा के नीचे ज़ेर है खी। अब सा और खी को मिलाना है तो क्या होगा, सखी, है ना, रुकना नहीं है, ऐसे नहीं, सखी ऐसे नहीं, बिल्कुल बिना रुके, सखी। ऐसे रा पर ज़बर है तो रवा होगा रा, सखी रा।
را پر ज़बर है तो रा होगा, ही रही, अब समझ में आ गया होगा। माँ रहीमा, लई बा, लईबा, शरीबा, शरीबा। अब यहाँ पे देखें ये ऐन है यहाँ तक, फिर ये मीम आ गया है ना। जैसे हमने बताया था मुरक्कबात हरूफ आपको पता होने चाहिए, अगर आप सही से पढ़ लेंगे अलग अलग करके कौन सा हरूफ क्या है, तब आप इसको समझने में आपको आसानी होगी। अमी, अमीला, अमीला, बरी क़ा, बरीक़ा। ये तो पता ही होगा, ज़बर में आ की आवाज़ आती है, ज़ेर में ई की आवाज़ आती है। खतीफ़ा, खतीफ़ा। ऐसे जज़ीअ, सक़ीमा, सक़ीमा। गशिया, नसी, ये सीन है, नसिया, अब इसे रवा पढ़ लेते हैं। इबिली, रदीफ़ा, हमीदा, शहीदा, बखीला, सखीरा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। रहीमा, लईबा, शरीबा, अमीला, बरीक़ा, खतीफ़ा, जज़ीअ, सक़ीमा, गशिया, नसिया। अब अगला है लास्ट जो है, इसके बाद पेश, इसको समझ लेते हैं। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए, यानी मारूफ का मतलब ऐसे अलिफ पेश ऊ, ठीक है, अलिफ पेश ऊ, अलिफ पेश ओ, बा पेश बू नहीं पढ़ना आपको। और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। कैसे आवाज़ से बचा जाए? मजहूल तरीके से, थोड़ा भी नहीं खींचना आपको। पेश की आवाज़ क्या है, आगे को जाती है, जब उसमें क्या होता है, होंठों के किनारे क्या है मिलते हैं और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहता है, यानी होंठ गोल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सु, जीम पेश जू, हा पेश हु, खा पेश खू, दाल पेश दू। अब ऐसे आप इसे रवा पढ़ें। जाल के ऊपर पेश है। अच्छा, इसमें आवाज़ बता देता हूँ मैं कैसे आवाज़ आएगी। इसमें जो आवाज़ आएगी वो ऊ की आवाज़ आएगी, छोटे ऊ की। जाल पेश जू, रू, जू, सू, शू, स्वाद पेश सू, वाद पेश दू, त्वा पेश तू, ऐसे। ज़ुआ पेश जू, ऐन पेश ऊ, गैन पेश गु, फा पेश फू, काफ पेश खू, काफ पेश खू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, हमज़ा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू। तो पता लग गया, इसमें सब में ऊ की आवाज़ आएगी। अब इसमें मश्क कर लेते हैं, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा एक हिज्जों से बता देता हूँ आपको, बाकी आप रमा बता दूँगा। रा पेश रू, सीन पेश सू। अब दोनों का रवा मिलाएं, इसका रू इसका सू, तो दोनों का रवा जब मिलाएंगे तो क्या होगा, रुसू। लाम पेश लू, तो क्या हो गया, तीनों का रवा रुसुलू। ऐसे सीन पेश सू, दाल पेश दू, सुदू, सीन पेश सू, सुदू सू, फा पेश फू, काफ ज़ेर की, फ़ुकी, दाल ज़बर दा, फ़ुकीदा, है ना, फ़ुकीदा। ऐसे जल्दी पढ़ेंगे, ज़बर ज़ेर पेश को हमेशा जल्दी पढ़ते हैं। काफ पेश कू, ता ज़ेर ती, कुती, है ना, इसका रवा कू, इसका हो गया ती, कुती। लाम ज़बर ला, कुतीला। नून, अब इसका रवा, अब इसे रवा पढ़ के देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये नून है, नून के ऊपर पेश है, तो क्या होगा रवा, नू। इसका ये काफ है, ज़ेर है नीचे, की, नू की। सीन के ऊपर ज़बर है तो रवा क्या होगा, सा, क्या होगा, नू की सा।
अब इसका बताएं, करू करू मा करू मा, उली उली, मीम के ऊपर ज़बर है, रवा हो जाएगा मा, उली मा, हापेश हु, दाल ज़ेर दी हुदी या हुदिया। अब रवा पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते हैं, रवा कीजिए, हु दी हुदी या हुदिया। सुहु सुहु फु सुहुफु, वुसी वुसी आ वुसी आ। काफ के ऊपर पेश है, रवा बताएं क्या होगा, कु, दाल के नीचे ज़ेर है, रवा बताएं क्या होगा, दी खुदी, रा पर ज़बर है, रवा होगा रा खुदी रा। नून के ऊपर पेश है, रवा होगा नू, स्वाद के नीचे ज़ेर है, रवा होगा सी, छोटी के बाद आती है, मिलाएंगे दोनों का रवा, नुसी, नू सी नहीं नुसी, रा पर ज़बर है रा, नुसी रा। अब इसे एक बार रवा पढ़ लेते हैं, रुसुलु सुदुसु, फुकिदा कुतिला, नुकिसा करुमा, उलिमा हुदिया, सुहुफु वुसिआ कुदिरा नुसिरा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। अगर आप मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली वीडियोस आप देखेंगे तो मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ किस तरीके से हर्फ मिलेंगे या किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप मेरी ये पूरी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। और अगर उर्दू में कोई दिक्कत है, अगर आप उर्दू के लिए कहेंगे तो मैं उर्दू के लिए प्लेलिस्ट ले आऊँगा, ठीक है, उस पर ही बनाऊँगा वीडियोस, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊँगा ताकि आप उर्दू पढ़ना भी सीख जाएँ जिनको नहीं आती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए, नूरानी कायदे पर या मदनी कायदे पर, ठीक है, या क़िरत पर, जिस भी क़िरत का चाहिए तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे।